ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تلاوت کے بعد وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تلاوت کے بعد میں اپنے مشفق والد محترم جناب شیخ عطاء الرحمن سعیدی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہمارے اس دینی مجلس میں آ کر لیلۃ القدر کے عنوان میں خطاب فرمائیں. آپ لوگ سے امید کہ آپ لوگ غور سے سنیں گے اور عمل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ نبینا و حبیبنا و سیدنا محمد بن عبد اللہ صلوات اللہ و سلامہ علیہ وعلى آلہ و اصحابہ و ازواجہ و من والاہ الی یوم الدین. اما بعد. شاہدین کرام اور اس زوم پروگرام میں موجود دین پسند ہماری مائیں، بہنیں، بچے اور بزرگان دین، انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق اور اس کی مدد چاہتے ہوئے آج میں آپ لوگوں کو لیلۃ القدر کے سلسلے میں کچھ نہایت اہم ترین باتیں بتلانا چاہتا ہوں. اور پروگرام شروع کرنے سے پہلے 2 گزارش ہے. پہلی گزارش یہ ہے کہ اخلاص نیت کے ساتھ نہایت دھیان سے سنیں گے، غور سے سنیں گے، اور اگر کوئی سوال ہوگا تو پروگرام کے اخیر میں جواب دینے کی کوشش کی جائے گی. دوسری بات، یہ پروگرام ویسے خاص طور پر عورتوں کے لیے ہے، لیکن مرد بھی بیٹھ کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. البتہ زوم پروگرام یہ لائیو بھی ہو رہا ہے، اس لیے دوران تقریر آپ لوگ خاموش رہیں گے. تقریر ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ سب کو سوال کرنے کی اجازت دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ جن سوالوں کے جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے گا ان سوالوں کے جوابات بھی دیے جائیں گے. رب العالمین ہم سب کی نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے، اور ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا باعث رحمت مغفرت بنائے اور قبول فرمائے. آمین. میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں اور میری پیاری دین پسند ماؤں اور بہنوں، میں آپ سب کو اس پروگرام میں مبارکبادی دیتے ہوئے، استقبال کرتے ہوئے بتلانا چاہتا ہوں کہ آج کا موضوع کیا ہے. آج کا موضوع ہے لیلۃ القدر، جس کو اردو میں شب قدر کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ نیکیوں کی توفیق دیتے ہوئے اس سال کا لیلۃ القدر اور ہر آنے والے سال کا لیلۃ القدر میسر فرمائے، اور اپنے سے قریب کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے گناہوں کو بخش دے. آمین.
मेरी माँ और बहनों और दिगर हाजिरीन किराम, अरबी ज़बान में अरबी डिक्शनरी के हिसाब से अगर देखा जाए तो लैलतुल क़द्र में दो लफ्ज़ है। एक है लैला यानी लैल और दूसरा है अल-क़द्र। लैल का तर्जमा रात से किया जाता है, जिसको फ़ारसी में शब कहा जाता है, और क़द्र का तर्जमा कई एक है, जिसको मैं अभी बतलाऊँगा, एहतराम, बुलंदी, इज़्ज़त, शराफत वग़ैरह वग़ैरह। तो गोया लैलतुल क़द्र में दो लफ्ज़ हैं, एक लैला और एक है क़द्र, जिसको कहा जाता है शब क़द्र। और लफ्ज़ ही से लुग़वी एतबार से लैलतुल क़द्र, शब क़द्र, क़द्र वाली रात, क़द्र वाली रात, लफ्ज़ ही से ये पता चलता है कि यकीनन शब क़द्र, लैलतुल क़द्र बहुत ही अजीम तरीन रात है, बहुत ही क़द्र वाली रात है। और एक बात यहाँ ये भी समझते चलिए कि शब किसको कहा जाता है या रात किसको कहा जाता है, या लैल, अरबी में लैल किसको कहा जाता है। शब या रात या क़द्र मग़रिब के फ़ौरन बाद से लेकर के और फजर सानी तक, यानी सहरी का वक्त ख़त्म होने तक, इस लंबी मसाफत को लैलतुल क़द्र लैल कहा जाता है। रात की शुरुआत कब से होती है? जैसे ही सूरज डूबा, मग़रिब का वक्त हुआ, उस वक्त से लेकर के कब तक? जब फजर का अव्वल वक्त हो जाए, इस लंबी मसाफत को रात कहा जाता है। ये हमें जान लेना चाहिए। और अगर हम शरई इस्तिलाह के अंदर, शरीअत मुतहरा के इस्तिलाह में अगर हम लैलतुल क़द्र का माना देखें तो इसके बहुत सारे मानी और मफ़हूम उलमाए किराम ने बयान किया है। चुनाचे एक तारीफ़ लैलतुल क़द्र की, शब क़द्र की, उलमा ने ये की है कि लैलतुल क़द्र वह मुबारक रात है जो रमज़ान मुबारक के महीने में उसके आखिरी 10 दिनों में से कोई एक रात है। वह मुबारक रात जो रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 रातों में से कोई एक रात है, जिस रात को अल्लाह ताला ने कुरान अज़ीम को उतारा, और जिस रात को अल्लाह ताला पूरे साल के मामलों का फैसला फरमाता है, और जिस रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से, यानी 83 साल 4 महीने से भी कहीं ज़्यादा अफजल और बरतर है। ये शरीयत के अंदर शब क़द्र की तारीफ़ है, यानी वो रात जो क़द्र वाली रात है, मुबारक रात है, रमज़ान के महीने में है, रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 ताक रातों में से कोई एक रात है, जिस रात को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद उतारा, और जिस रात में अल्लाह ताला पूरे अगले साल के सारे मामलात का फैसला फरमाता है, जिस रात को इतनी कसीर तादाद में, इतनी भारी अदद में फरिश्ते दाखिल उतरते हैं कि ज़मीन तंग हो जाती है, और जिस रात को फजर के वक्त तक फरिश्ते सलामती भेजते हैं। ये लैलतुल क़द्र की तारीफ़ हुई। अब आइए मेरे भाइयों साथियों, अल्लाह ताला ने इसको फरमाया है इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, जैसा कि अज़ीज़ अब्दुल्ला हमूद ने अभी इसकी तिलावत की। अल्लाह उनकी आवाज़ में बरकत दे, अल्लाह उन्हें कुरान का पक्का सच्चा हाफिज़ बना दे, हर तरह से हिफाजत करने वाला और हिफ्ज़ करने वाला बना दे, आमीन। और सारे मुसलमानों के बच्चों को अल्लाह ताला हाफिज़ कुरान बनाए, आलिम कुरान बनाए,
اور قرآن کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ رب العالمین اس دعا کو تو ہماری سن لے، آمین۔ قدر والی رات۔ اب آئیے قدر کا مطلب ہم جان لیں۔ ویسے ہم لوگ جانتے ہیں قدر احترام، شرافت، بزرگی، مقدس، کئی معنی۔ قدر کا معنی علماء کرام نے مختلف انداز سے بتلایا ہے، اور اس کو میں صرف اس وجہ سے بتلا رہا ہوں تاکہ ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ میں لیلۃ القدر کی اہمیت، اس کا مقام، اس کا رتبہ، اس کی حیثیت خوب اچھے طریقے سے بیٹھ جائے، ہم سمجھ جائیں، تاکہ جو 2 دن کے بعد یا 1 دن کے بعد آنے والے آخری عشرے ہے اس کو ہم خوب غنیمت سمجھ سکیں۔ تو میرے بھائیوں ساتھیوں، اس کے بہت سارے معانی ہیں، مطلب ہے قدر کا، ارتھ ہے، اسی میں سے ایک ارتھ ہے شرف، مقام، بلندی، وقار، عزت و احترام، عظمت، اور گویا اس رات کو جسے اللہ تعالی اخلاص نیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک کی مطابقت اور پیروی کرتے ہوئے اپنی عبادت کرنے کی توفیق دے دیتا، وہ قدر والا ہوتا ہے، وہ بلندی والا ہوتا ہے، وہ شرف والا ہوتا ہے، وہ عظمت والا ہوتا ہے، کیونکہ یہ رات بذات خود بڑی قدر والی رات ہے، بڑی شرف والی رات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیلۃ القدر کے اندر قرآن کریم کو اتارا۔ اور میں پچھلے درس میں رمضان مبارک کے آخری 10 دن کے تعلق سے جب میں نے گفتگو کی تھی تو میں نے بتلایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو مکمل طور پر سمائے دنیا پر، نچلے آسمان پر، لیلۃ القدر ہی میں قرآن کو پورا کا پورا قرآن سمائے دنیا پر اللہ تعالیٰ نچلے آسمان پر اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے اندر اتار دیا۔ اس کے بعد حسب ضرورت جستا تھوڑا تھوڑا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے اندر قرآن اتارا۔ 23 سال کس طریقے سے؟ ہجرت سے پہلے جو مکی زمانہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اسے مکی زمانہ کہا جاتا ہے، اور اس کی مدت کتنی ہے؟ 13 سال۔ نبی بنائے جانے سے لے کر کے ہجرت مدینہ تک 13 سال، اور ہجرت مدینہ سے لے کر کے وفات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنا؟ 10 سال، تو کل مدت ہوئی 23 سال۔ تو سمائے دنیا پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو ایک بارگی لیلۃ القدر میں اتار دیا۔ پھر اس کے بعد جستا تھوڑا تھوڑا حسب ضرورت اپنی حکمت اور علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے 23 سال کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پر یہ پورا قرآن اتارا۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ لیلۃ القدر کی کتنی عظمت اور کتنی بڑی حیثیت اللہ رب العالمین کے یہاں ہے۔ مسلمانوں قربان جاؤ، آپ لیلۃ القدر کے امتی ہیں، قربان جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مقدس کو اتارنے کے لیے سال بھر میں اس رات کو چوائس کیا، اس رات کو منتخب کیا جس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے، لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، قدر والی رات کہا جاتا ہے، شرف والی رات کہا جاتا ہے، عظمت والی رات کہا جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں ساتھیوں، اس وجہ سے بھی اسے قدر والی رات کہا جاتا ہے کہ اس رات میں اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، برکتوں کو لے کر کے، رحمتوں کو لے کر کے، مغفرت اور بخشش کو لے کر کے۔ اس رات اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، برکت کو لے کر کے، رحمت کو لے کر کے، معافی کو لے کر کے، بخشش کو لے کر کے، مغفرت کو لے کر کے۔ اب آپ اندازہ لگا دیجئے کہ یہ لیلۃ القدر کتنی عظیم ترین رات ہے، جس دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے فرشتے اللہ کی زمین پر بخشش لے کر کے اترتے ہیں، مغفرت لے کر کے اترتے ہیں، رحمت لے کر کے اترتے ہیں، برکت لے کر کے اترتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کی اتاری گئی مغفرت، اللہ کی اتاری گئی رحمت،
अल्लाह की उतारी गई बरकत को हासिल करने के लिए हमें इस रात की कदर करनी चाहिए और इस रात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक इखलास नीयत के साथ अल्लाह की इबादत में गुजारना चाहिए, क्योंकि जो इस रात में अपनी हयात मुबारका इबादत की हालत में गुजारेगा वो बरकत वाला होगा, वो शरफ वाला होगा, अल्लाह उसको उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। कद्र वाली रात इस वजह से भी कहा जाता है इसको कि अल्लाह के खजाने का फजल और करम और एहसान और अल्लाह की सखावत, अल्लाह की फयाजी, अल्लाह की मेहरबानी इतनी है जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। क्या कोई हम में से अल्लाह के फजल का, अल्लाह के खजाने का, अल्लाह के यहाँ जो रहमत है, अल्लाह के पास जो बरकत है, जो करम है, जो फयाजी है, जो सखावत है, क्या कोई शख्स हम में से अल्लाह के इन खूबियों का अंदाजा लगा सकता है? कतअन नहीं लगा सकता है मेरे भाइयों साथियों। तो जिस तरह अल्लाह के फजल, करम, फयाजी, रहमत और बरकत का अंदाजा कोई हम में से नहीं लगा सकता है, ऐसे ही जिस आदमी को, जिस मर्द को, जिस औरत को ईमान के साथ सवाब हासिल करने की नीयत से, इखलास नीयत के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पाक की पैरवी के साथ जिसे उस रात इबादत में गुजारने का मौका मिल जाए, उसके भी नेकियों का, खैर का, भलाइयों का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम्हें क्या पता, तुम सोच नहीं सकते हो, तुम अंदाजा नहीं लगा सकते हो, तुम गेस नहीं कर सकते हो कि लैलतुल कद्र के अंदर अल्लाह ताला ने कितनी बरकत, कितनी फयाजी, कितना सखावत और कितनी मेहरबानी और कितनी मग़फ़िरत पिरो दिया है और भर दिया है मेरे भाइयों साथियों। कद्र वाली रात इस वजह से भी कहा जाता है कि कद्र के माने तंगी के भी होते हैं, तंग हो जाना, कोई कुशादा चीज तंग हो जाए। अल्लाह ताला लैलतुल कद्र को जमीन पर इतने फरिश्ते उतार देता है, इतने फरिश्ते उतार देता है कि जमीन तंग नजर आने लगती है। जमीन तंग, इतनी भारी तादाद में, इतने कथीर तादाद में अल्लाह ताला इसके अंदर फरिश्तों को उतार देता है कि जमीन तंग नजर आती है। और फरिश्ते तो उतरते ही उतरते हैं लैलतुल कद्र के अंदर, इसके अलावा जिब्रील अमीन भी उतरते हैं, जिब्रील अमीन भी उतरते हैं, इसलिए इसको कद्र वाली रात कहा गया है। और कद्र वाली रात इस वजह से भी कहा कि अल्लाह ताला लैलतुल कद्र के अंदर, शबे कद्र के अंदर पूरे साल के सारे मामलात का फैसला उतारता है। कौन क्या खाएगा, क्या बीमारी आएगी, क्या परेशानी आएगी, कितना होगा, क्या कुछ होगा, पूरे साल का फैसला अल्लाह ताला इस रात के अंदर उतार देता है, पूरे साल का फैसला। अब आप अंदाजा कीजिए, इस रात की अहमियत को समझिए कि जिस रात को अल्लाह ताला पूरे एक साल के सारे उमूर का फैसला फरमाता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे लिए आने वाली जिंदगी के अंदर रब्बे कायनात हमारे ऊपर करम करते हुए, मेहरबानी करते हुए, शफकत करते हुए, तरस खाते हुए हमारा अगला साल बेहतर से बेहतर बना दे, तो हमें इस रात को गनीमत समझना चाहिए। इस रात जो कदर वाली रात है, जिस दिन पूरे साल की रोजियां उतरती हैं, दुख और सुख उतरता है, हम उसको गनीमत समझे, अपने मिजाज के हिसाब से नहीं, रब्बुल आलमीन के चाहत के हिसाब से। और रब्बुल आलमीन की चाहत को जानने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पाक को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मेरे भाइयों, ये है इसका माना। और इससे बढ़कर के आप, जैसा कि मैंने शुरू में बतलाया, कद्र वाली रात, वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या अंदाजा कि शबे कद्र क्या है।
हकीकत में अगर हमारे मन में, हमारे दिमाग में अच्छी तरह इस लैलतुल कद्र की कद्र कीमत बैठ जाए तो यकीनन हम अपने सारे दुनियावी कारोबार को छोड़कर कोशिश करेंगे कि रमजान मुबारक की आखिरी 10 रातें, सारी की सारी रातें, मगरिब से लेकर के फजर का वक्त होने तक सारी की सारी रातें, सारी चीजों से फुर्सत लेकर अल्लाह की इबादत में गुजार दें। और इसका अंदाजा लगाइए, अल्लाह ताला ने फरमाया लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर। लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फि शहर, शबे कद्र 1000 महीने से भी बेहतर है, 1000 महीनों से भी बेहतर है। दो मतलब, गोया पूरे साल के अंदर कोई ऐसी रात नहीं है जिस रात की इबादत 1000 साल की इबादत से कहीं ज्यादा अफजल और बरतर हो। लैलतुल कद्र किसी और रात के अंदर नहीं है। दूसरी बात, लैलतुल कद्र जिसे मिल गई शबे कद्र और अल्लाह की इबादत में उसने गुजारा अल्लाह के मर्जी के मुताबिक, तो गोया एक रात की इबादत खैरुम मिन अल्फि शहर, बराबर नहीं कि 1000 महीने के बराबर है या 1000 महीने जैसा है, बल्कि 1000 महीने से भी कहीं ज्यादा अफजल है, बेहतर है। और 1000 महीने में आप निकालेंगे तो 83 साल, 83 ईयर्स, 83 साल 4 मंथ, 4 महीने बनते हैं। कितनी मुबारक रात है। मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, मेरे बच्चों, उम्मते मोहम्मदिया के लोगों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाने वाले लोगों, अपने गुनाहों की बख्शिश और मग़फ़िरत की तमन्ना रखने वाले लोगों, आने वाली है वो रात जिस रात की इबादत 83 साल 4 महीने की इबादत से कहीं ज्यादा अल्लाह ताला के यहाँ अफजल और बरतर और महबूब है। आपको एक बात और बताते चलूं, हफ्ते में जुमा की रात सबसे अफजल है। अशरा में जिसको 10 कहा जाता है, अशरे जिलहिज्जा, ये सबसे अफजल है। महीनों में सबसे अफजल महीना रमजान मुबारक का महीना है, और रातों में सबसे अफजल रात लैलतुल कद्र है। हफ्ते में जुमा की रात सबसे अफजल है। महीनों में सबसे अफजल महीना रमजानुल मुबारक है। अशरात में यानी 10-10 में जिसको अशरा कहा जाता है, इसमें सबसे अफजल कौन सा अशरा है, कौन से 10 दिन है? जिलहिज्जा के शुरू के 10 दिन, 1 जिलहिज्जा से लेकर 10 जिलहिज्जा तक, क्योंकि उसके अंदर सारे वाजिबात देखा जाए जो अरकान इस्लाम है, सारे की सारी की अदायगी उसके अंदर होती। रातों में, साल भर की सारी रातों में सबसे अफजल रात कौन सी रात है? लैलतुल कद्र है, शबे कद्र है। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये शबे कद्र की अहमियत क्या है, इसका मकाम क्या है, इसे एक कल्बे मोमिन को, कल्बे मुसलमान को किस तरह इससे लौ लगाना चाहिए, और इस रात के पाने के लिए, तलाशने के लिए, जुस्तजू के लिए कितनी संघर्ष और कितनी मेहनत करनी चाहिए। आप अक्लमंद हैं, आप होशियार हैं। पूरे साल का फैसला इस रात के अंदर होता है। फरिश्ते जिब्रील अमीन के साथ इतनी भारी तादाद में उतरते हैं कि जमीन तंग हो जाती है, और फजर तक सलामती की दुआ करते हैं। फजर तक फरिश्ते सलामती की दुआ करते हैं। यह शरफ वाली रात है, यह इज्जत वाली रात है, यह एहतराम वाली रात है। यही वो रात है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को उतारा, और यही वो रात है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल को नबी बनाया। मेरे भाइयों साथियों, बड़ी कद्र वाली रात है। अब आइए देखें हम और आप, अगरचे कुछ बातें मैं पहले भी बता चुका हूं और आज भी बता चुका हूं, फिर भी बताना चाहता हूं कि लैलतुल कद्र, शबे कद्र, जिसको हमारे यूपी के भाषा में या बहुत सारे जो रत जगह कहा जाता है, रत जगह, और अब तो हम नहीं जानते, जमाने से अपने इलाके से हम दूर हैं,
लेकिन हमने अपने बचपने की उम्र को देखा है और बुलूगत के करीब को उम्र को देखा है कि गांव और देहातों के अंदर पहले ज़माने में, आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले जो मैंने देखा है कि लाइटों का इंतज़ाम नहीं था, अच्छे मकानात नहीं होते थे, लोग मिट्टी का तेल जला जला करके पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुजारते थे, औरतें भी, बच्चियां भी, मर्द भी और बूढ़े भी। और अगर किसी के घर में बैठकर पढ़ने की जगह नहीं होती तो मोहल्ले के घरों में इकट्ठे होकर के रज्जगा करते थे, नफिले पढ़ते थे, कुरान की तिलावत करते थे, जिक्र अस्कार करते थे और दुआएं पढ़ते थे। ये पहले था। लेकिन अब आज चूंकि दुनिया कुशादा हो गई है, शैतान का हरबा हमारे ऊपर ज्यादा चल गया है और आज हम 20 साल 22 साल से अहसा में हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ खाली सीजन, सिलाई कर लो, ये बटोर लो, ये समेट लो। आज भी हम देखते हैं कि लैलतुल रमजान मुबारक के आखिरी अशरे के अंदर भी बहुत सारे लोगों को तरावीह पढ़ने की तौफीक नहीं मिलती है, सिर्फ दुनिया की मोहब्बत में और दुनिया के लालच में। बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे कि आज रमजान की 18 तारीख है ना, आज 18 तारीख थी, आज 19 रमजान, आज 19 रमजान है। अल्लाह की कसम 19 का आधा 8.5 पारा भी बहुत सारे लोगों को पढ़ने की तौफीक नहीं मिली होगी, जबकि उनके बाप ने, उनके उस्ताजों ने उन्हें कुरान की तालीम दी होगी, कुरान पढ़ना भी जानते होंगे। ये दुनिया की मोहब्बत, ये दुनिया का हिर्स, ये दुनिया की लालच। तो मेरे भाइयों साथियों, आइए थोड़ा इख्तिसार के साथ लैलतुल कद्र की खुसूसियात को हम सुन लें। इसके अंदर क्या क्या खास चीजें हैं, हम इसको जान लें और समझ लें, ताकि हम समझने के साथ साथ इस रात के कदरदान हो सकें, इस रात के रहमतों के मुस्तहिक बना सकें। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। पहली खुसूसियत, जैसा कि मैंने बतलाया कि अल्लाह ताला ने लैलतुल कद्र के अंदर कुरान को उतारा। अल्लाह ताला कहता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, हमने कुरान मुक़द्दस को लैलतुल कद्र के अंदर उतारा, यानी समाए दुनिया पर एक बारगी अल्लाह ताला ने कुरान करीम को लैलतुल कद्र के अंदर उतारा। दूसरी बात, शब कद्र ये मुबारक रात है और आप जानते हैं मुबारक का, जिसके अंदर बरकत भर दी गई ठूस ठूस के। मुबारक रात है। अल्लाह ताला ने फरमाया है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, हमने इस कुरान मजीद को मुबारक रात के अंदर उतारा है। मेरे भाइयों साथियों, ये मुबारक लैलतुल कद्र, क्या होगा भाई, मुबारक रात के अंदर ये कुरान करीम उतारा। गोया लैलतुल कद्र ये मुबारक रात है, बाबरकत रात है, बरकतों से ये अटी हुई रात है, बरकतों से ये भरी हुई रात है। इसके अंदर जो अल्लाह ताला ने बरकतें उतार दी हैं, इस रात को अल्लाह ताला ने जितना मुबारक बनाया है, बाबरकत बनाया है, उसका हम और आप अंदाजा नहीं कर सकते और गेस नहीं कर सकते। मेरी माँ और बहनों और सामाईन किराम, जूम प्रोग्राम का लिंक हम आपको दोबारा भेज रहे हैं, क्योंकि 40 मिनट के अंदर ये बंद हो जाता है। इसलिए थोड़ा आप लोग इंतज़ार कीजिए ताकि ये प्रोग्राम मुकम्मल आप लोग दे सकें। चलेगा। तो मैं अब तक बतला चुका रमजान लैलतुल कद्र की खुसूसियत। नंबर 1, इसके अंदर अल्लाह ताला ने कुरान उतारा है। नंबर 2, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये मुबारक रात है। ये कौन सी रात है? मुबारक रात है। नंबर 3,
लैलतुल कद्र के अंदर अल्लाह ताला अपनी हिकमत कामिला के जरिए पूरे साल का फैसला फरमाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया अमरम मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसलीन रहमतम मिन रब्बिक इन्नहु हुवस समीउल अलीम। तो गोया अल्लाह ताला इसके अंदर पूरे साल के मामलात का फैसला फरमाता है। लैलतुल कद्र की खुसूसियत में से 4 नंबर की खुसूसियत यह है कि लैलतुल कद्र में किया गया अमल 1000 महीने के अमल से कहीं ज्यादा बेहतर है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फि शहर, लैलतुल कद्र 1000 महीने से भी बेहतर है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर कोई शख्स अल्लाह की तौफीक पा जाए, अल्लाह का एहसान उसके ऊपर हो जाए और उसे शबे कद्र के अंदर ईमान और सवाब हासिल करने की नियत से क़ियामुल लैल का शरफ मिल जाए, क़ियामुल लैल करने का मौका मिल जाए, तो उसके पिछले छोटे गुनाह माफ हो जाते हैं। अल्लाह के हज़रत अबू हुरैरा अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मन कामा लैलतुल कद्र ईमान व इहतिसाबा गुफिरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, कि जिसने ईमान के साथ सवाब हासिल करने की नियत से लैलतुल कद्र में क़ियाम किया तो उसके पिछले गुनाह माफ हो जाएंगे। और अगर कोई शख्स इतना बदनसीब निकला, इतना लापरवाह निकला कि वो लैलतुल कद्र के खैर और भलाई से अपने आप को महरूम कर लिया, सोने में, कमाने में, दिगर उमूर में उसने गुजार दिया, लैलतुल कद्र से जो महरूम हो गया, ये जान लीजिए वो सारे खैर और सारी भलाई से वो महरूम हो गया। जैसा कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रमज़ान मुबारक के अंदर एक रात है जो जिसकी इबादत 1000 महीने से बेहतर है। मन हुरिमा खैरहा फक़द हुरिम, जिसने उस लैलतुल कद्र के खैर से, भलाई से, बरकत से महरूम हो गया तो ये समझ लीजिए कि वो सारी चीज़ों से महरूम हो गया। ये सुनने नसई की रिवायत है और अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही इब्न माजा के अंदर इस रिवायत को सही करार दिया। ये रमज़ान मुबारक, ये लैलतुल कद्र की खुसूसियत है, ये लैलतुल कद्र की अहमियत है कि अगर कोई शख्स लैलतुल कद्र के खैर और भलाई से महरूम हो गया तो आकाए दो जहां फरमाते हैं वो सारे खैर और सारी भलाइयों से वो महरूम हो गए। मेरी माँ और बहनों और सामईन किराम होशियार रहिएगा, ऐसा ना हो कि हम लैलतुल कद्र के खैर और भलाई से महरूम कर दिए जाएं। और लैलतुल कद्र की 5वीं खुसूसियत यह है कि अल्लाह ताला ने बजाते खुद लैलतुल कद्र की ताज़ीम फरमाई है, अज़मत वाली रात माना है अल्लाह ताला ने। और जब हमारा और आपका रब ने जो अल्लामुल गुयूब है, जब उसने लैलतुल कद्र की ताज़ीम और एहतराम किया है तो हम अल्लाह के बंदों और बंदियों को लैलतुल कद्र की कितनी ताज़ीम करनी चाहिए। इसका अंदाज़ा आप इससे कह सकते हैं कि ताज़ीम ही की उजागर हो, लैलतुल कद्र की ताज़ीम ही को उजागर करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम्हें क्या पता, तुम सोच नहीं सकते हो, तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि लैलतुल कद्र क्या इतनी अजीम रात है, इतनी बड़ी रात है, इतनी मुबारक रात है कि इसका आप अंदाज़ा नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने वमा अदराका, तुम्हें क्या पता, तुम सोच नहीं सकते, तुम उसकी हकीकत और माहियत तक जाने से उसके अंदर जो अल्लाह ताला ने खैर और भलाई पोशीदा किया उस तक तुम पहुंच नहीं सकते हो। लैलतुल कद्र की खुसूसियात में से 6 नंबर की खुसूसियत यह है कि इस रात के अंदर फरिश्ते उतरते हैं और जिब्रील अमीन उतरते हैं, और जिब्रील अमीन के साथ जो फरिश्ते उतरते हैं वो सारे के सारे फरिश्ते खैर लेकर के उतरते हैं, भलाई लेकर के उतरते हैं, बरकत लेकर के उतरते हैं, रहमत लेकर के उतरते हैं, अल्लाह की फयाज़ी लेकर के उतरते हैं, अल्लाह की सखावत लेकर उतरते हैं, अल्लाह का करम लेकर के उतरते हैं, अल्लाह की मेहरबानी लेकर के उतरते हैं।
ये है लैलतुल कद्र। जिब्रील अमीन जो वही लाया करते थे, जिनको रूह भी कहा गया है, वो भी उतरते हैं और दूसरे फरिश्ते भी भारी तादाद में उतरते हैं। और क्या लेके उतरते हैं? खैर, भलाई, अल्लाह की मग़फ़िरत, अल्लाह का करम, अल्लाह की मेहरबानी और अल्लाह की कृपा। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने फरमाया है, इसकी दलील है तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा, इस लैलतुल कद्र के अंदर फरिश्ते उतरते हैं। कहाँ? जमीन पर, अल्लाह की जमीन पर फरिश्ते उतरते हैं। और कौन उतरता है? वर्रूह यानी जिब्रील अमीन उतरते हैं बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब की इजाजत से। यहाँ एक अकीदा का मसला है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बहुत सारे कामों की जिम्मेदारी दे रखी है और फरिश्तों के अंदर अल्लाह ताला ने गूनागू ताकत, नौ बनो ताकत दी है। लेकिन फरिश्ते भी बिना अल्लाह की इजाजत के कोई काम अपने से नहीं कर सकते। ये अल्लाह की शान है, ये अल्लाह का मकाम है, ये अल्लाह का रुतबा है। ठीक है, जिब्रील अमीन आपको वही लेकर के भेजा जाता था। आप लैलतुल कद्र को उतरते हैं, आप फरिश्तों के साथ उतरते हैं अल्लाह की इजाजत से हर खैर और भलाई। लेकिन बिना अल्लाह की इजाजत चलेगी तो अल्लाह ही की चलेगी। बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब की इजाजत। गोया फरिश्तों को नफा और नुकसान पहुंचाने का चंदा हक नहीं है, कुछ भी हक नहीं है जब तक अल्लाह ना चाहे। गोया किसका सिक्का चलता है? अल्लाह का सिक्का चलता है, अल्लाह का हुक्म चलता है। और हमारे इंडिया पाकिस्तान के जो बहुत सारे जाहिल ये रखते हैं कि ख्वाजा का सिक्का चलता है, ख्वाजा का सिक्का चलता है। ऐसे लोगों तक मैं अपना पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि मुसलमान उसे कहते हैं जो तौहीद उलूहियत पर हो, तौहीद रुबूबियत पर हो, तौहीद अस्मा और सिफात पर हो। अल्लाह के बिना हुक्म के, अल्लाह के बिना इशारा के, अल्लाह के बिना मर्जी के, अल्लाह के बिना इजाजत के एक दरख्त का पत्ता भी नहीं गिर सकता, न हिल सकता है, ठस मस नहीं होता। बिइज़्नि रब्बिहिम, ये फरिश्ते, ये जिब्रील अमीन लैलतुल कद्र को उतरते हैं अपने रब की इजाजत से। बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्li अम्र, हर फैसले को लेकर के जो अल्लाह फैसला फरमाता है, सारी चीज़ों को लेकर के ये जिब्रील अमीन और दूसरे फरिश्ते उतरते हैं। लैलतुल कद्र की खुसूसियात में से एक और खुसूसियत सुन लीजिए कि लैलतुल कद्र सरापा मुकम्मल सलामती वाली रात है। और इस रात के अंदर अल्लाह ताला की जानिब से हर तरह की सलामत मिलती है, हर अजाब से सलामत मिलती है, हर पकड़, हर इकाब से सलामत मिलती है। बंदे के अमल के हिसाब से, अल्लाह की इताअत के मुताबिक ये सलामती वाली रात है। और सलामती उसे मिलती है जो अल्लाह ताला से सलामती चाहे। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसे अपनी हालत के बदलने की फिक्र ना हो। आप सलामती चाहें तो सलामती लेके फरिश्ते उतरे हैं, लेकिन आप सलामती वाले बने तो, आप अल्लाह की सलामती के हकदार बने तो आप अपने आप को इतना खूबसूरत, इतना मजबूत, इतना हैंडसम बना ले कि अल्लाह की सलामती आपको मिले। अल्लाह ताला ने फरमाया सलामुन हिया हत्ता मतलइल फजर, सारे फरिश्ते जिब्रील अमीन फजर के तुलू होने तक सलामती की दुआ करते हैं। तो ऐ मेरी माँ और बहनों, ऐ लोगों, अगर आप चाहते हो कि जिब्रील अमीन और दीगर फरिश्ते जो सलामती लेकर उतरते हैं, सलामती की दुआ करते हैं, अपने आप को सलामती के लायक बनाओ और लैलतुल कद्र पर कुर्बान जाओ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करते हुए लैलतुल कद्र को अल्लाह की इबादत में गुजार दो। मेरे भाइयों साथियों, लैलतुल कद्र की खुसूसियात में से है कि अल्लाह ताला ने लैलतुल कद्र के अंदर, शब कद्र के अंदर कुरान करीम की उन आयतों को भी उतारा है जिसकी तिलावत अल्लाह के बंदे क़यामत तक करते रहेंगे जब तक उनकी जान में जान है। और वो ये बरकत ही है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। इसी तरीके से लैलतुल क़द्र की खुसूसियात में से एक खुसूसियत है, अल्लाह ताला पूरे रमजान के अंदर तहज्जुद पढ़ने वालों को
इखलास के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करते हुए सारे लोगों को बख्श देता। लेकिन लैलतुल कद्र के अंदर अल्लाह ताला खुसूसियत के साथ लैलतुल कद्र में क़ियाम करने वालों को अल्लाह ताला बख्श देता है मेरे भाइयों। चुनाचे जो लैलतुल कद्र के खैर भलाई से महरूम हो गया वो सारे खैर और भलाई से महरूम हो गया। लैलतुल कद्र की शब कद्र की फजीलतों में से एक फजीलत जैसा कि मैंने बतलाया पूरे साल की रातों में सबसे अफजल रात है। पूरे साल की रातों में सबसे अफजल रात। बहुत जागे, बहुत खेले खाए, बहुत वक्त गुजारा किस्से कहानियों में, दुनिया के कमाने में। मेरे भाइयों, अगर आप पूरे रमजान मुबारक के आखिरी 10 दिन अगर आपके ऊपर ड्यूटी करना कफील की तरफ से, जिम्मेदार की तरफ से फर्ज नहीं है, आपके घर में खाने पीने का असबाब है, अल्लाह की कसम हमें चाहिए कि पूरे रमजान मुबारक के आखिरी 10 दिन जिसके अंदर लैलतुल कद्र है, जिसकी इबादत 1000 महीने से कहीं ज्यादा बेहतर है, उसके लिए हम अपने आप को फारिग कर ले मेरे भाइयों साथियों। इसी तरीके से लैलतुल कद्र की और बहुत सारी खुसूसियतें हैं और अल्लाह ताला इस रात की एक खुसूसियत ये भी रखा है कि अल्लाह ताला ने इसके अंदर बहुत सारे लोगों को अपने फजल से नवाजता है, अपनी मेहरबानी से नवाजता है, अपनी मग़फ़िरत और बख्शिश से नवाजता है। और बसा औकात बंदा महसूस भी कर लेता है, उसको इतनी थरथराहट, इतनी खुशी, अल्लाह से इतनी अकीदत, अल्लाह से इतनी मोहब्बत हो जाती है कि आंखों से सावन और भादों की तरह बरखा होने लगती, कांप उठता है। वो महसूस कर उसका शौक, उसका लगाव, उसका लगन अल्लाह ताला की नेमतों को हासिल करने के और ज्यादा बढ़ जाता। बहुत सारे लोग इसको महसूस भी कर जाते हैं। लेकिन मैं यहां ये बतलाऊंगा, अगर किसी बंदे या बंदी को ये महसूस हो जाए किसी भी तरीके से कि मुझे लैलतुल कद्र मिल गई, तो उसे छिपाना चाहिए, उसे बयान नहीं करना चाहिए कि मुझे लैलतुल कद्र मिल गई थी, मैं ऐसा ऐसा किया था, तो ऐसे ऐसे घबराहट और परेशानी, ऐसे ऐसे खुशी, ये किसी से नहीं बयान करना चाहिए। अगर किसी को लैलतुल कद्र मिल जाए, वो महसूस कर जाए, तो उसे दूसरों से नहीं बयान करना चाहिए। 3-4 वजह है। एक वजह तो रियाकारी आने का अंदेशा रहेगा, दिखावा आने का अंदेशा रहेगा। और अगर किसी अमल के अंदर रियाकारी आ गई, सारी मेहनत अकारत, वो जन्नत में जाने का सबब, अल्लाह के करम हासिल करने के सबब के बजाय वो जहन्नम में जाने का सबब। लिहाजा अगर किसी को लैलतुल कद्र मिल जाए तो उसे दूसरों से बयान नहीं करना चाहिए, क्योंकि रियाकारी आने का खतरा। दूसरा क्या कसूर हो सकता है, कहीं घमंड ना आ जाए, तकब्बुर ना आ जाए, अपने आप को बड़ा नेक, अपने आप को बड़ी पाकदामन, अल्लाह वाली ना समझने लगे, अल्लाह वाला ना समझने लगे। क्योंकि अगर तकब्बुर इबादत के अंदर आ गया तो इबादत रायगा और बर्बाद हो जाएगी। यह अल्लाह का करम है, यह अल्लाह की मेहरबानी है, यह अल्लाह की तौफीक, अल्लाह का बहुत अजीम तरीन, बहुत बड़ा एहसान है अपने उस बंदे पर और अपनी उस बंदी पर जिसे अल्लाह ताला ईमान के साथ, इखलास के साथ लैलतुल कद्र में इबादत करने का मौका दिया और उसे दे भी दिया। घमंड अगर आ गया, किसी चीज में घमंड करना जायज नहीं। तीसरी वजह क्या है कि नहीं बयान करना चाहिए, हसद भी पैदा हो सकता है। हसद, आपने जिससे बयान किया, जिसके सामने इस चीज का इजहार किया, उसके दिल में हसद भी आ सकता है। और ना खुद किसी से हसद करना चाहिए और ना ही किसी के लिए हसद का जरिया बनना चाहिए। और आज के बिगड़े माहौल में लोग अच्छे लोगों को देखकर रश्क नहीं करते कि वो अच्छा हुआ, नेक है, ये काम करके लाओ हम भी ये काम करें, बल्कि रश्क करने के बजाय हसद करने लगते हैं। और हसद इस तरह करते हैं कि अल्लाह इसको जो तूने लैलतुल कद्र में नेमत या मग़फ़िरत दी है, इसको ज़ाय कर दे, इससे छीन कर हमें दे दे। तो ये हसद की वजह से और बहुत वो हसद से महफूज रहेगा।
चौथी बात यह कि समाज में वो उसने इखलास के साथ बयान किया, लोगों को उभारने के लिए बयान किया, लेकिन समाज में फैल गया कि फला बंदी को लैलतुल कद्र मिल गया, फला बंदे को लैलतुल कद्र मिल गया, लोग उसकी तारीफ करने लगे, इधर उधर चर्चा करने लगे, जाहिर में उसका अदब व एहतराम करने लगे, बुजुर्ग और शरीफ समझने लगे, दुआ करवाने के लिए आने लगे बहुत सारे। तो हो सकता है इसकी वजह से उसकी इतनी तारीफ और शोहरत हो जाए कि ना चाहते हुए वो शोहरत का जरिया बन जाए, जिससे उसके अंदर शोहरत तलबी आ जाए। और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मामले में शोहरत तलबी से रोका है। ये चंद बातें थी लैलतुल कद्र के माना और मफहूम के ताल्लुक से, और लैलतुल कद्र शब कद्र की खुसूसियात के ताल्लुक से जो मैंने बयान किया। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल इसी वक्त फिर मैं ज़ूम पर प्रोग्राम लूँगा लैलतुल कद्र के और अहकाम व मसाइल बतलाने के लिए। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन हम सब की इस मेहनत को कबूल फरमा ले, हम सब का इकट्ठा होना बाइस बरकत और बाइस रहमत बना दे, और जब हम जुदा हों तो हम तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से बख्श दे और हम सब की कुर्बानियों को कबूल फरमाए, हम सब के आमाल किरदार और नीयतों में इखलास अता फरमाए, और क़ियामत के दिन भी इसका खातिर खा फ़ायदा दे और दुनिया के अंदर भी इसका खातिर खा फ़ायदा दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल सऊदी टाइम के हिसाब से 9 बजे प्रोग्राम ज़ूम पर मैं लूँगा और लैलतुल कद्र के मुताल्लिक़ कुछ और अहम बातें बतलाने की कोशिश करूँगा। गुजारिश है कि आप लोग खुद तैयार रहें, दूसरों को भी बतलाएं, क्योंकि अद्दाल्लु अलल खैर कफ़ाइलिही, भलाई पर रहनुमाई करने वाले को वही अजर व सवाब मिलता है जो भलाई पर चलने वाले को मिलता है। और अल्लाह के रसूल अकरम से फरमाया लन यहदी अल्लाहु बिका रजुलन वाहिदन खैरुल लका मिनद दुनिया व मा फीहा। अगर तुम्हारे वजह से, तुम्हारे बुलाने की वजह से, तुम्हारे प्रोग्राम शेयर करने की वजह से एक आदमी को हिदायत मिल जाए तो उस एक आदमी का हिदायत पा जाना दुनिया और आखिरत से कहीं ज़्यादा बेहतर है। अब मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोगों को मौका देता हूँ सवाल करने का। आप लोग सवाल कीजिए और मैं जवाब देता हूँ।